मास्टर, चलिए गुड इवनिंग सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। आत्मा वंदन। आज क्या करना है? लाफ्टर का डेली कर सकते हैं 5-10 मिनट्स, देन ध्यान कर सकते हैं। मैं उस दिन एक बात बता रही थी, स्क्रीन शेयर हम ना वो करेंगे अपना कन्नड़ में कर सकते हैं। ವಚನ बसवन्ननवर वचनಗಳು करके कुछ मैं सिलेक्ट करके रखी हूँ, तो इनके बारे में कन्नड़ में बोलना पड़ेगा। कोई हिंदी वाले आगे तो हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी, नहीं तो कन्नड़ में। मैं इसमें देखिए बहुत फेमस वाले सिलेक्ट करा है। ಲೋಕದ ಡೊಂಕ ನೀವೇ ಕಿತ್ತಿದ್ದುವಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತನುವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನೆರೆಮನೆಯ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅಳುವವರ ಮೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ संगम देवा करके वो लिखते हैं। तो लोक का डंका मतलब लोक का मतलब दूसरों का गलती हम नहीं ठीक करने जाते हैं, दूसरों का अपने अपने तन मन को संतैसिಕೊಳ್ಳಿ मतलब देख लेना, और दूसरों के घर वाले नेबर का उनके दुख के लिए हमें रोने से वो भगवान नहीं खुश होगा, ऐसे बात है। ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹಿಂದಿಯವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಹಿಂದಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ಟೊಂಕನ್ನ ನೀವ್ಯಾಕೆ ತಿದ್ದಿತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತನು ಮನನ ಸಂತೈಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆರೆಮನೆಯವ್ರ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅಳುವವ್ರಿಗೆ ಆ ದೇವರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ದೇವರು, ಅವ್ರ ಕಾವ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಮೆಚ್ಚಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ವಚನ, ದಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮವ್ಯಾವುದಯ್ಯ, ದಯವೇ ಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ, ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲ ತೊಲ್ಲನಯ್ಯ. तो ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ. ಪತ್ರಿಜಿನು ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ದಯವೇ ಬೇಕು सकल प्राणिಗಳಲ್ಲಿ, कोई भी जीव, तो हर प्राणियों में हमें दया होना चाहिए, उसी के बारे में वो बोलते हैं। इसलिए कोई भी प्राणी को मार के नहीं खाना चाहिए। तो उस पे का क्वेश्चन उठता है, चैलेंज, कोई बोलता है तो बोलते फिर इंसान को काहे चाहिए ऐसे, आपको खाने का है तो। इतने उसके बारे में बताया उन्होंने नॉन वेजिटेरियनिज्म। मीन्स आपको कोई भी प्राणी को मारने का आपको हक नहीं। हम नहीं मार रहे, आप खा रहे हैं। खाना भी गलत है, मारना भी। उनको आधा लगेगा मतलब नेचर का वो बिगड़ जाता है। तो इसलिए ದಯಾ ಇಲ್ಲದ ಧರ್ಮನೇ ಇಲ್ಲ, ದಯಾ ಇಲ್ಲದ ಧರ್ಮನೇ ಇಲ್ಲ, ದಯಾ ಇರಬೇಕು ಹರ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅದೇ ದಯಾನೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮವರು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಒಲಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊಲ್ಲುವವನೇ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿತ್ತು, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆ ಥರನೇ ನಾನು ವಚನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಕೊಲ್ಲುವವನೇ ಮಾದಿಗ, ಹೊಲಸು ತಿಂಬುವನೇ ಹೊಲೆಯ, ಕುಲವೇನು ಆವಂದಿರ ಕುಲವೇನು ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ, ಲೇಸನೆ ಬಯಸುವ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರೇ ಕುಲಜ. ಯಾರು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಮಾದಿಗ, ಹರಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹೊಲಸು ತಿಂಬುವನೇ ಹೊಲೆಯ. ಆಮೇಲೆ ಕುಲವೇನು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕುಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಆವಂದಿರ ಕುಲವೇನು ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ, ಲೇಸನೆ हर प्रत्युंद जीव के लेस अच्छा उसके बारे में जो सोचता है वही उसी बात पे वो भगवान खुश होता है। हर जीवात्मा के बारे में अच्छा सोचने वाले का देख के भगवान खुश होता है। तो हर जीवात्मा का लेस मतलब अच्छाई, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆತನ ಬಯಸಿದಾನೆ,
ಅದೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಶರಣರು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ. ಕಳಬೇಡ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ, ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ, ಮುನಿಯಬೇಡ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ, ತನ್ನ ಬನ್ನಿಸಬೇಡ, ಇದಿರು ಅಳಿಯಲು ಬೇಡ, ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಸುದ್ದಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನೊಲಿಸುವ ಪರಿ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾತಾಡಬೇಡ, ಅವರು ಕೀಳ್ರು ಅನ್ಬೇಡ, ಹುಸಿ ನುಡಿಬೇಡ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದ ಕಮ್ಮಿ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುನಿಸಬೇಡ, ಅವ್ರ ಇತರರಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ತೆಗಳೋದು ಬೇಡ, ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊಗಳೋದು ಬೇಡ, ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ, ಇದಿರು ಹೊಳಿಬೇಡ, ಯಾರಿಗೂ ಇದಿರು ಬೋಲ್ನ ನೀವು, ಇದಿರು ಹೊಳೆಯಬೇಡ, ಇದೇ ಅಂತರಂಗದ ಈ ತರ ನಾವು ಜೀವಿಸಿದ್ರೆ, ಈ ತರ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವಿದ್ರೆ, ಇದೇ ಅಂತರಂಗದ ಶುದ್ಧಿ, ಒಳಗಿನ ಶುದ್ಧಿ. ಅಂತರಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂತರಾತ್ಮ. ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊರಗಿದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಾವು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮನ ಹೋಲಿಸಕ್ಕೆ साध्य है। बड़ा फेमस है। इसको हम हिंदी में बोला तो किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, उनका बुराइयों को नहीं सोचना, उनके बारे में हमें बुरा नहीं बोलना। वो बोल रहे तो तब भी हमें कोई बात नहीं बोलना उसके लिए। और दूसरों के लिए कोई हम द्वेष दिखाते, द्वेष नहीं करना। तो अपने आप को बहुत अच्छा करके प्राउड नहीं, ईगो बताते ना, अब मैं ही अच्छा हूँ, वो नहीं करना। तो ऐसे रहने से ही क्या होता है, अपना अंतरंग का शुद्धि होगी, अंतर आत्मा का, और वही रंग का शुद्धि भी होगी। ऐसे रहने से वो भगवान हमारा मैनिफेस्ट, मतलब एक तरह अनुभूति हमें मिलेगा, ऐसे जीवन जिएंगे। और एक आज बसवಣ್ಣ ಒಂದು ಕೈ बताएंगे, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಸ್ಫಟಿಕದ ಸಲಾಕೆಯಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಲಿಂಗ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಹುದೆನ್ನಬೇಕು, ನುಡಿಯೊಳಗಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲ संगम ಒಲಿಯಲ್ಲ। जो भी हम बात बोलते हैं वो कैसे होना चाहिए, एक एक हम मोतियों को पिरोते हैं ना, उस माला की, मोती के माला जैसे होना चाहिए। तो कोई बात हम बोलते हैं तो वो माणिक्य, डायमंड का शाइनिंग, दीप्ति बोला जाए, शाइनिंग जैसे होना चाहिए। और जो हमारे बात स्फटिक, स्फटिक भी वो भी इसमें आता है। स्फटिक को क्या बोलते हैं, स्फटिक सलाके अंतिरु, स्फटिक मतलब इसमें लगाते, पिरामिड में भी रखते, स्फटिक यानी क्रिस्टल, हाँ जी, क्रिस्टल क्लियर सलाह, उस कॉलम जैसे होना चाहिए। और हम जो भी बात बोलते हैं तो लिंग यानी भगवान उसको पसंद करके, वाह वाह बहुत बढ़िया बोलते हैं ना हम कोई शायरी, क्या बात है, वाह 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 वाह, वैसे होना चाहिए। और ऐसे बातें नहीं करेंगे तो भगवान हमें पसंद नहीं करेगा करके बोलते हैं। और एक है, दो है लास्ट, बहुत फेमस वाले। और एक है, ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿ ನೀನು ಬಂಧು ನೀನು ಬಳಗ ನೀನು ನೀನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರು ಇಲ್ಲವಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ। यहाँ माता पिता को कंपेयर कर रहे, उस अंतरात्मा को, सुप्रीम सोल को, अहम ब्रह्मास्मि को। तुम ही बापा हो, तुम ही माँ हो, तुम ही माँ हो, तुम ही बाप हो, माँ बाप, मदर फादर आप ही हो, और आप ही रिलेटिव बंधु हो, और आप ही हमारा बढ़क, रिलेशन बोलते हैं ना, रिलेटिव्स। तो आप नहीं है तो कोई नहीं है,
जो व्यक्ति आत्मा में जीता है ना, उनको बहुत अच्छा ये बात लगेगा। तो ऐसे नहीं हुआ तो कोई हमारा है ही नहीं, तो आप ही सब कुछ मेरा, यानी आत्मा के लिए वर्णन कर रहे हो, आप ही सब कुछ हो मेरे लिए। तो इवन माता पिता से भी ऊपर रख दिया। जब हम माता पिता के इसमें हम जन्म लेके आते हैं, तो एक हम अपने अपने डिजाइन, सोल प्लान, सोल डिजाइन के हिसाब से लेके आए रहते, उसमें उनका भी रहेगा, हमारा भी रहेगा। बट हम जब हम आत्मा में जिएंगे ना, उनसे भी ऊपर, बोला जाता है माता पिता को हमें फुल ऐसा रिस्पेक्ट देना है। तो उसके बाद ऊपर वाले है, तो नेक्स्ट जो एक परमात्मा को ये लेते हैं, तो उनके उनको सब संबंधों से ऊपर हम मानेंगे। तो आत्मा में रहना सबसे ऊंची, तो आत्मा में रहना ही परमात्मा के साथ, यही है मैं आत्मा परमात्मा हूँ वाले समझ को समझने का अंतिम ये होता है। किसी को एनलाइटन वाले पर्सन इसको अपनाते, हर वक्त वो सोचते कहीं मैं आत्मा से इधर उधर तो नहीं हूँ। एक मिनट पे आपको सोल कॉन्शियस से हट जाएंगे, तो हमसे कुछ ना कुछ विकार, सोच, अरिषड वर्ग बोलते हैं, उससे हम छूट जाते, उसमें बंध जाते। हाँ, और एक और है, लास्ट बताओ। अभी दो तीन और है। ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು ನಾನೇನ ಮಾಡುವೆ ಬಡವನಯ್ಯ ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಸವಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಕೇಳಯ್ಯ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕಿಡುವುದುಂಟು ಜಂಗಮಕ್ಕ कड़विल्ला। तो इसमें क्या बोल रहे, उल्लवरु जिनके पास पैसे हैं वो मंदिर बना सकते हैं, और मैं क्या करूं, मैं तो गरीब हूँ। तो क्या बोलता है, भक्त मीन्स एक रियलाइज्ड पर्सन होता है, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन। मैं तो गरीब हूँ, क्या बोलता है, मेरा पैर ही कंब, मतलब मंदिर का जो कंब बोलते हैं ना, कॉलम, और मेरा देह देवुल, ये जो शरीर है ये मंदिर है। मेरा सिर जो है मंदिर के ऊपर का कलश, कलश जो होता है मंदिर में, मेरा सिर ही वो कलश है। ऐसे बोल के भगवान को वो अपने आप को अर्पित कर रहे हैं। केळय्य कूडल संगम देवा, यानी भगवान। तो इसके बिना मैं क्या वो ये कर सकता हूँ। तो इसमें बहुत मीनिंग है। तो मैं ज्यादा अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ, तो आप एक दो बार सुन लीजिए। ऐसे तो बहुत सारे हैं, दोहे का भी बहुत है, कबीर दोहे। दोहे को कोई आप उसका एक्सप्लेन मीनिंग के साथ बता सकते हो तो बहुत अच्छा है, मैं भी ट्राई करूंगी कभी। और एक है, ಕಂಗಳು ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಗಳು ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕೈಗಳು ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ಪೂಜಿಸಲಿಲ್ಲ, ಮನ ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ, महंत कूडल संगम देवा। ये भी उसी के रिलेशन में। आंख देख के आंख भर आए, हम देख ही नहीं पाए किसको, अपने, मतलब कोई भगवान देख के भर के आंख भर आए, देख के तो हमारा आंख भर गए, तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे। और कान सुन के, कान में हम ऐसे हो जाएगा, कोई दूसरी चीजें हमें सुनना पसंद नहीं करेगा, भगवान के इसमें हम उन्हीं के इसमें लीन है। और हाथ, हाथ पूरा भर गया, तो हम पूजा करना छोड़ दिया, किस बात का पूजा करूं। और मन, हृदय जो वो भर गया, तो फिर किसको याद करेंगे। मतलब ये सारे अवेयरनेस में, आंखों से, कान से, हाथों से, और हम अपना हृदय से भगवान के साथ कनेक्ट हो गए, तो ऑटोमेटिकली वहां हर वक्त हमारे साथ, वो हम इसी स्थिति को ही बोलते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। एक और है लास्ट, देवलोक
ಮೃತ್ಯು ಲೋಕವೆಂಬುದು ಬೇರಿಲ್ಲ ಕಾಣಿರಲ್ಲ. ಸತ್ಯವೇ ನುಡಿಯುವುದೇ ದೇವಲೋಕ, ಮಿಥ್ಯವೇ ನುಡಿಯುವುದೇ ಮೃತ್ಯುಲೋಕ. ಆಚಾರವೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಅನಾಚಾರವೇ ನರಕ. ನೀವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲು ಸಾಕು. ये भी ऐसे है, देवलोक मृत्युलोक अलग नहीं है. जो हम बोलते हैं देवलोक और मृत्युलोक दोनों अलग नहीं है, समझ लीजिए. और सत्य बोला देवलोक है, सत्य जो बोलता है वो देवलोक है. मिथ्य जो बोलता है मृत्युलोक है. जो झूठ बोलता है, गलत बोलता है, वो मृत्युलोक के बराबर है. और आचार है स्वर्ग का. आचार हम जो अपना आचार विचार रखते हैं ना, सुविचार, उसको आचार बोलते हैं. आचार है स्वर्ग का. अनाचार जो गलत करते, अनाचार है नरक. इसका प्रमाण आप ही हो. यानी हम कभी कभी गलत बोलते हैं तो लगता है किसी को पता नहीं चला, मैंने किसी के बारे में झूठ बोला है, किसी को पता नहीं चला, बोलते हैं. इसी बात को बोल रहे हैं आचार अनाचार. आचार भी स्वर्ग, अनाचार भी नरक. तो ये चीज हमें लगता है इसका प्रमाण आप खुद हो, यानी भगवान. तो इसको हम आत्मा दे बताए, नाम दे, परमात्मा का नाम दे, वो खुद है इसका प्रमाण. तो वो दे. कभी इसीलिए बोलते हैं जब आप आध्यात्म रास्ते में चलते हैं तो हमें बहुत अवेयरनेस में रहना रहता है. जितना हम साधना करते हैं कुछ ऐसे हमारे पास बुरे सोच गलत ये आने लगे, हमने जो भी साधना किया सब डूब जाए, हमारे आत्मा वृत्ति खत्म हो जाएगी. तो हम नरक वाले क्या यही पे जिएंगे. हमें प्रकृति हमें गलत वो दे देगी, हम गलत सोच रहे तो हमें अपने आप से डरेंगे. कोई झूठ भी बोला हो, कितना बड़े से बड़े भी हमें प्रॉफिट मिल रहा हो, तब भी वो लोग उस इसमें चलने वाले व्यक्ति झूठ बोलने का ये नहीं करेगा, क्योंकि इस झूठ को पूरा करने के लिए जन्म जन्म में उसका फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम. तो मैं एक छोटे से ये करोड़ों भी प्रॉफिट हो रहा है ना, छोटा सा है. क्योंकि कभी हम उसी खुशी को पाने के लिए वो प्रकृति हमें कष्ट देगी ना, उस कष्ट से बाहर आने के लिए करोड़ भी देंगे ना, वो नहीं बाहर आ सकते. तो इस अवेयरनेस में रह के हम उसका डिसीजन लेते हैं. तो हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हम अपने आप से. तो ये वाले में भी हम अवेयरनेस में रहने लगते हैं. तो ध्यानियों को इसका बहुत अच्छे से समझ आने लगता है, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ. इसको बोलने से करने से मेरा ये कर्म का सिद्धांत में क्या बदलाव, क्या मैं इसका रिजल्ट कैसे भोगूंगा. तो हम एक तरह का अवेयरनेस में आ जाए. तो ये साउथ के बहुत फेमस 12वीं शताब्दी के वो थे. वो एक शादीशुदा संत थे. मतलब फैमिली के साथ उन्होंने बहुत हर एक को अपना हो, कोई ऊपर नहीं नीचे नहीं, कोई खड़ा बेटा कोला बेटा बोले, कोई दूसरों को नीचे ऊपर नहीं देखना, सबको सबके अंदर आत्मा परमात्मा मानते बहुत लोग हैं वहां पे भी. उनके उनको बहुत पूजेंगे, सब करते हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों पे आज भी कोई नहीं चल रहा. कोई बहुत इस बात पे चलने वाला कोई एक कर रहा होगा अभी भी. ये सब चल रहा है उनके साथ में, वो कहलाते हैं ये सही है, ये सब चलता ही हर इसमें. हिंदी नॉर्थ में भी है, साउथ में भी. हम तो सारे संतों का इन सबका सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हम अपने लाइफ में उसको अप्लाई नहीं करेंगे, उस सिद्धांतों पे उस पथ पे नहीं चले. थोड़ा भी हम उस पथ पे चलने का कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं ना, हम अपने आप में उस भगवान के साथ कनेक्ट हो जाए. तब हम बोल सकते मैं परमात्मा हूँ. ऐसे ही कोई घमंड हम बोल रहे मैं शरीर प्रेमी है, शरीर के ऊपर कई एक चीजों को पसंद करके अहम में रह रहा है, तो उसको जाके बोले तो बोला मैं परमात्मा हूँ. आपका एक्टिविटी आपका सोच विचार से कहीं से भी नहीं लग रहा है, लेकिन है अंदर उसका परमात्मा का शक्ति, परमात्मा खुद है. तो जब तक हम उनको उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, उनको उनके जैसे जीने के लिए हम तत्पर उस पथ पे नहीं चलते, तो हम वो चीज को बोल नहीं सकते, बोलने का हमें कोई हक नहीं. जब हम वो चीज
उस परमात्मा गुण में जीने का हमारे इसमें नहीं है, तो वो बोलने का भी कोई हक नहीं है। तो कोई ना थोड़ा समझ वाला, ठीक है, पत्री जी ने बोला हर परमात्मा है, चलो मैं भी परमात्मा हूँ। परमात्मा हर एक के अंदर है ही, बट हम उसको छुपा के रखें अपने कर्मों से, अपने अहंकार से। तो इन सबको हटा के, पर्दा हटा के देखेंगे, वो खिलखिलाता हुआ बहुत खुशी से हमारे साथ, वो इंतजार कर रहे थे कब मुझे लोग देखेंगे, याद करें। तो इसके बारे में मैं कल कुछ बात बताऊंगी, कैसे वो हमारे इंतजार के लिए, अंदर के आत्मा परमात्मा को देखने के लिए कैसे वो बेसब्री से बैठा रहता है। इसके बारे में हम कल बात करते हैं। चलिए मास्टर्स, ध्यान करते हैं हम अभी के, ध्यान के लिए बैठ जाइए। दोनों हाथों को क्लैप्स करिए, इंटरलॉक करिए, एंड चेयर या सोफे पे बैठे तो पैरों को क्रॉस करिए। धीरे धीरे अपना नेत्र बंद करिए एंड रिलैक्स योर होल बॉडी। एक एक शरीर के अंगों को तनाव मुक्त करते जाइए, रिलैक्स करते जाइए। सिर से लेके पैरों की उंगलियों तक के अंगों को हम रिलैक्स करते जाएंगे। रिलैक्स, 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 रिलैक्स योर होल बॉडी and start observing your own प्राकृतिक नेचुरल ब्रेथ, सहज प्राकृतिक श्वास। अंदर आते हुए श्वास, बाहर जाते हुए श्वास देखते जाना है, एक जागृति भाव से, प्रज्ञा स्थिति में रहते हुए, अवेयरनेस के हिसाब से देखते जाएंगे। श्वास को देखते देखते जैसे हम जीरो थॉट में आते, जीरो शून्य स्थिति में आते, शून्य विचार शून्य होते हैं, तो हमारा शरीर का सिर के ऊपर का ब्रह्मरंध्र खुल जाता है, ब्रह्म कमल खिल जाएगा। जैसे खिलता है तो भरपूर विश्व प्राण शक्ति शरीर में बहने लगता है। तो फिर आप अपने शरीर के एक एक अंगों, एक एक नसों को क्लींस करते हुए पूरा बॉडी को क्लींजिंग प्रोसेस कराना है। इस प्रोसेस के दौरान कहीं आपको विचार आने लगे तो फिर आप अपने सहज श्वास पे अपना ध्यान लीजिए। इसी प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहना चाहिए। डीप ध्यान में आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए अभी हम म्यूजिक के साथ ध्यान को आगे बढ़ाते हैं।
मास्टर थोड़ी देर मौन ध्यान करते हैं। मास्टर्स जो डीप ध्यान में है, ध्यान कंटिन्यू करें। इनको ध्यान से बाहर आके लगता है वो धीरे धीरे अपने शरीर की प्रज्ञा में आ जाइए। अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के सामने रख के 5 सेकंड के लिए 1 2 3 4 5 धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और धन्यवाद व्यक्त करिए, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए थालियों के साथ अपने माता पिता के प्रति, अपनी प्रकृति के प्रति और अपने गुरु के प्रति और अपने साथ जो ध्यान करें सारे ध्यानार्थियों को भी हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स।